Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English notebook and your English grammar book. Turn the page to page number 105 as I'll be continuing with letter writing, that is formal letter writing. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 105 as I'll be continuing with formal letter writing. Now students, letter writing are of two types. One is the formal letter and the other is informal letter. Formal letters are written to offices, schools, especially as students you all write applications. आप प्रिंसिपल को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, टीचर्स को एप्लीकेशन लिखते हैं एंड एप्लीकेशंस कम अंडर फॉर्मल राइटिंग, whereas informal letters are letters written to friends, relatives, family members, है ना, इन सब को जो हम लिखते हैं तो ये informal letter होता है. दोनों के फॉर्मेट आर डिफरेंट. In my last video I had explained the format of formal letter. There are main 8 parts of the format of formal letter writing. मैंने आपको 8 parts बताए थे. Once again I'll be revising and then I'll be writing a letter. Students, you all have got a red margin line in your English notebook. आप सबकी नोटबुक में एक रेड कलर की मार्जिन लाइन होती है, ठीक है. अब लेटर राइटिंग में इस मार्जिन लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है. वाई? बिकॉज आपको सब कुछ, जब आप लेटर लिखते हो आपको सब कुछ लेफ्ट से लिखना है और आपको मार्जिन लाइन से एकदम पास में स्टार्ट करना है लेटर विदाउट टचिंग द मार्जिन लाइन. यू नीड टू इंश्योर दैट आपके जो लेटर्स हैं दैट शुडंट टच द मार्जिन लाइन एंड ऑल योर लेटर्स शुड फॉल वन बिलो द अदर, है ना. ऐसा नहीं कि एक लेटर आपने यहाँ लिखा है, एक इधर एक इधर एक, दैट zigzag लुक्स वेरी बैड एंड दैट्स इनकरेक्ट फॉर्मेट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको याद रखना है कि आपकी ये जो मार्जिन लाइन है इससे एकदम आपको पास में लिखना है वर्ड्स, इंश्योरिंग कि कोई भी लेटर आपका इस मार्जिन लाइन को टच नहीं करता है. तो बेटा फॉर्मल लेटर के देयर आर 8 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज द सेंडर्स एड्रेस. ये मैं आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ वंस अगेन. फर्स्ट पार्ट आपका क्या है बेटा? सेंडर्स एड्रेस. Now what do you mean by sender's address? The one who is sending the letter, the one who is writing the letter is the sender. And आप application लिख रहे हो तो आप sender हो. And as class 4 students, all of you must know your address, है ना, क्योंकि address का भी एक format होता है कि जो भी proper nouns है, that is the name of the locality, the name of the lane, है ना, ये सब आपके प्रॉपर नाउन से एंड दे आर टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सो सबसे पहले योर एड्रेस शुड बी नोन टू यू बिकॉज आप अपना ही ना एड्रेस लिखोगे. सो फॉर दैट प्लीज ऑल ऑफ यू, इफ यू डू नॉट नो योर एड्रेस, प्लीज लर्न योर एड्रेस. हर एज क्लास 4 स्टूडेंट्स यू आर बिग इनफ टू नो द एड्रेस. सो सबसे पहला पार्ट जो है फॉर्मेट का, formal letter ka, that is the sender's address, that is your address. Fine. Now wherever I am drawing a line, that's an indication for you to leave one line. जहाँ मैं लाइन खींच रही हूँ आपको वहाँ पे लाइन नहीं खींचनी है. That's an indication कि वहाँ पे आपको लाइन लीव करनी है, ठीक है. लेटर राइटिंग में स्पेस कहाँ आपको छोड़ना है कहाँ नहीं, that is very important. So sender's address के बाद, and sender's address maximum 3 or 4 lines, not more than that. You must ensure कि आपका जो address है वो 3 lines में आ जाना चाहिए and all your letters should fall one below the other. Sender's address के बाद बेटा जो second है that is the date. Second है वो आपकी date आती है और date लिखने का भी एक format है. First the month. So let's say the month is February. Keeping in mind that February is a proper noun, so F should be capital. February's F should be capital. Then today's date is 16, comma, then the year 2021. So this is the format of the date. Month, then date, then the year. And keeping in mind that all the names of the months are proper noun, so they must begin with a capital letter. Now after the date, again I am drawing a line. That's again an indication
need to leave one line. Now the third part is the receiver's address. थर्ड पार्ट क्या है बेटा आपका? रिसीवर्स एड्रेस. Now what do you mean by receiver? The one to whom you are writing the letter, the one who is going to receive your letter. Receiver कौन है? जो आपका लेटर रिसीव करेगा वो रिसीवर है. और यहाँ पे आप जो लेटर है किसको लिख रहे हो? द प्रिंसिपल. स्पेशली हम एप्लीकेशन लिखते हैं. As students we write the application for wanting leave, है ना? हम लोग को लीव चाहिए, सेक्शन चेंज कराना है, we have any problem, we want a change in the place, है ना? और whatever the reason may be, तो हम application principal को लिखते हैं. And maximum students वो गलत करते हैं. And always remember, हम जब एड्रेस करते हैं तो the principal's P is always capital, keeping in mind the correct spelling of principal. प्रिंसिपल का P हमेशा कैपिटल होता है. फाइन. और कहाँ की प्रिंसिपल है ना? सो वी ऑल स्टडी इन आर्मी पब्लिक स्कूल. सो आर्मी इज A कैपिटल, पब्लिक्स P कैपिटल एंड स्कूल्स S कैपिटल एंड देन द एड्रेस. ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये सब इधर आएंगी लेफ्ट साइड पे. ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा है तो आप लोग भी राइट साइड में लिख दो. फाइन. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं. अगर आपने इसमें एक भी मिस्टेक, कैपिटल, स्मॉल या स्पेसिंग की मिस्टेक की तो आपका पूरा रिसीवर्स एड्रेस इनकरेक्ट हो जाएगा एंड उसके मार्क्स कट जाएंगे. लेटर राइटिंग में फॉर्मेट के हर एक पार्ट के मार्क्स होते हैं. तो जो फॉर्मेट का जो पार्ट सही उसके पूरे मार्क्स, अगर एक भी मिस्टेक की तो उसके मार्क्स कट जाएंगे. क्लियर? नाउ आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस अगेन लीव वन लाइन. Wherever I am drawing a line, again and again I am repeating, आपको लाइन नहीं खींचनी है. That's an indication कि आपको वहां पे एक लाइन छोड़नी है. क्लियर? अब रिसीवर्स एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट. Now why is subject important? Now just imagine कि आपके प्रिंसिपल मैम जो है उनके स्कूल में approximately there are 2000 students, approximately I'm saying, and so many staff members, isn't it? So she has to handle a lot of people and many people must be writing applications to her. She must be getting lot of applications. So why do you write the subject? क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं कि पूरा मैटर. सब्जेक्ट बताएगा कि लेटर किसने क्यों लिखा है और सब्जेक्ट डिसाइड करेगा उनको कि उनको लीव एप्लीकेशन है, शील साइन इट. बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है विच शुड इमीडिएटली कम टू हर नोटिस, तो जिसको भी आप लेटर लिखते हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट ही पढ़ता है कि व्हाई द लेटर हैज बीन रिटन. फाइन. अब हम जनरली एज स्टूडेंट्स हम लीव एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखते हैं. सो वील बी राइटिंग लीव एप्लीकेशन. सपोज आपको अगर चेंज इन सीट है, सो यू कैन राइट चेंज इन सीट. Somebody's got weak eyesight and they've got problem, they are sitting at the back, they want to come in the front. So whatever the reason is, उसको आपको कम से कम words में you need to write the subject as to why you are writing the letter. अब after the subject again you need to leave one line. और ये बेटा last line है. सब्जेक्ट के बाद जो आपने लाइन छोड़ी है ये लास्ट लाइन छोड़ी. इसके बाद लेटर में आपको फॉर्मल लेटर में कहीं भी लाइन नहीं छोड़नी है. इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो. फाइन. आफ्टर द सब्जेक्ट आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है. अब आफ्टर दिस कम्स द सैल्यूटेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन मीन्स द ग्रीटिंग्स. हम किसी भी पर्सन को कैसे एड्रेस करते हैं. Like in this letter, we'll be writing a letter to the principal. So we all respect our principal, isn't it? We all respect. In case if you're writing to the teacher, you all respect your teacher. तो हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे? रिस्पेक्टेड मैडम. अगर सर है तो रिस्पेक्टेड सर. सो सैल्यूटेशन में जो रिस्पेक्टेड आएगा, यू नीड टू कीप इन माइंड कि रिस्पेक्टेड का आर विल ऑलवेज बी कैपिटल. ठीक है? Then madam's M will be capital. Madam oblique sir. In case if you are writing the application to a male person, तो आप madam की जगह क्या लिखोगे? sir. But you need to keep in mind कि respected का R capital रहेगा. अगर madam लिखा है तो madam का M capital, अगर sir लिखा है तो sir का S capital. Clear? So ये आपका salutation है.
फाइन। नाउ अब सैल्यूटेशन के बाद अगर आपने लाइन छोड़ दी तो आपका लेटर गलत हो जाएगा। फाइन। नाउ सैल्यूटेशन के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है। देन कम्स दी बॉडी ऑफ द लेटर। अब बेटा बॉडी ऑफ द लेटर का क्या मतलब होता है? बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स कि आपने लेटर में क्या लिखना है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आपने एप्लीकेशन, आप किस क्लास में पढ़ते हो, है ना, वो बताना है, क्लास, सेक्शन, योर नेम, है ना। देन आपने एप्लीकेशन क्यों लिखी है वो पूरा रीजन, अगर आपको लीव लेनी है सो यू नीड टू मेंशन द डेट्स कि आपको कब से कब तक लीव चाहिए एंड द रीजन फॉर अवेलिंग द लीव। फाइन। पूरी डिटेल वो बॉडी ऑफ द लेटर में आएगी। देन आफ्टर बॉडी ऑफ द लेटर 7 पे आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में स्पेशली इन एप्लीकेशन वी राइट योर्स, और योर्स का y will always be capital, yours obediently। एप्लीकेशन में हम जनरली yours obediently लिखते हैं, तो सबको एक तो obediently की स्पेलिंग आनी चाहिए, है ना, कीपिंग इन माइंड कि yours का y कैपिटल रहेगा एंड obediently की स्पेलिंग इज OBEDIENTLY। फाइन। एंड आफ्टर दैट द लाइन इज योर सिग्नेचर। Signature means you need to write your name in capital letter and the class along with the section. Fine. So these are the 8 main parts of application writing, and each of you must remember these 8 parts because ये हर एक part के marks हैं और आपको लेटर तो क्लास 12 तक लिखना है। सो अभी जितनी जल्दी फॉर्मेट लर्न कर लेंगे उतनी जल्दी आपको आसानी हो जाएगी। द लेसर द बर्डन। फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे लाइन छोड़ना है, तो टिल द 4th पार्ट, जो 4th पार्ट के बाद आपको लाइन छोड़नी है, 5th पार्ट के बाद आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। पहले तो ये आप बैठा लीजिए। सो फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस, देन लीव 1 लाइन, देन द डेट, देन लीव 1 लाइन, देन द रिसीवर्स एड्रेस, देन लीव 1 लाइन, then the subject, then leave 1 line, then salutation, then no line। अगर salutation के बाद line छोड़ दी तो पूरा गलत हो जाएगा। Then comes the body of the letter, then comes the complimentary close, and at the end, the last part is your name and class the signature that has to be written in capital letters। Fine। Now I hope अभी सबको समझ में आ गया होगा, and please learn these 8 parts। So now we are going to start with our application। अब हम एक application फिर से रिवाइज करेंगे because I've seen कि बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चे फॉर्मेट्स नहीं लिखते even in the senior classes। Fine। So let's write an application to the principal requesting her to grant you outstation leave। Fine। So let's assume this as our margin line। Now the question, write an application to the principal requesting her to grant you days outstation leave। 2 days outstation leave। Fine। This is the question। Write an application to the principal requesting her to grant you 2 days outstation leave। Now what do you mean by 2 days outstation leave? Outstation means going out of the station, going out of the town in which you are living, है ना। Especially at times there is a function in the family, there is a wedding in the family and you need to leave the place।
So we need to take leave from the principal. So today we'll write an application to the principal requesting her to grant you 2 days outstation leave. Fine. So after the heading students, I'm drawing 2 lines. That means you need to leave 2 lines. मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी. That's an indication कि आपको 2 लाइन छोड़ना. अब सबसे पहले क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस. फाइन. अब हम सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं. Clear? Now the sender's address is A10 Vijay Bagh, Snake Colony, Snake Colony, Varanasi. Sorry, I have written in capital letters. Need not write in capital letters. आपको जो A10 विजय बाग स्नेक कॉलोनी वाराणसी. फाइन. ये आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया. आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है. फाइन. विजय बाग, विजय's बी कैपिटल, बाग्स बी कैपिटल, प्रॉपर नाउन है ना. स्नेक कॉलोनी, एस ऑफ स्नेक कैपिटल, कॉलोनी सी कैपिटल. नाउ कीपिंग इन माइंड कि यू ऑल डोंट लिव in this address, so you all need to write your address. आप में से कोई भी ये एड्रेस कॉपी नहीं करेगा क्योंकि आप में से कोई भी इस एड्रेस पे नहीं रहता. फाइन. आप अपना एड्रेस लिखेंगे. आफ्टर राइटिंग द एड्रेस, फाइन, यू विल लीव 1 लाइन. मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. आपके लिए इंडिकेशन है दैट यू नीड टू लीव 1 लाइन. ठीक है. आपने एक लाइन छोड़ दी. फिर उसके बाद क्या आता है? डेट. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? ऐसे डेट लिख देते हैं. ये गलत है. आपको DATE डेट नहीं लिखनी है. आपको उस दिन की पर्टिकुलर डेट लिखनी है. बहुत बच्चे DATE डेट लिखते हैं विच इज इनकरेक्ट. तो डेट का एक फॉर्मेट है लेटर राइटिंग में, है ना. अभी मैंने समझाया था. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मंथ. मंथ इज फेब्रुअरी. Month is February and today is 16th, comma, then the year. ये हमने क्या लिखा? डेट. DATE डेट कोई भी नहीं लिखेगा. इसको आप याद कर लो. बच्चे अधिकतर डेट लिख देते हैं DATE. दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको उस दिन की डेट लिखनी है, ना कि डेट की स्पेलिंग. DATE डेट नहीं लिखनी है. उस दिन मंथ और डे वगैरह लिखना है. क्लियर? इसको लिखने के बाद अच्छा, अभी एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, है ना. वो क्या कि आपके सारे लेटर्स एक के नीचे एक के नीचे एक आने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक लेटर इधर लिखा, एक लेटर इधर, एक, है ना. ऑल योर लेटर्स शुड फॉल 1 बिलो द अदर. सारे वर्ड्स आपके एक के नीचे एक आने चाहिए. क्लियर? ये ध्यान रखना है. सब मार्जिन लाइन के एकदम पास, बट योर लेटर्स शुडंट, योर वर्ड्स शुडंट टच द मार्जिन लाइन. ठीक है. सारे एक के नीचे एक. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अब जो लेटर का फॉर्मेट है बेटा, हम लेफ्ट पे चलते हैं, इसीलिए मार्जिन लाइन को पकड़ के चलते हैं. जहां मार्जिन लाइन को छोड़ा वह हमारा लेटर का फॉर्मेट गलत हो जाएगा. बिकॉज अब जो लेटर का फॉर्मेट है सब लेफ्ट साइड से लिखते हैं. क्लियर? अब आफ्टर द डेट अगेन लीव 1 लाइन. डेट लिखने के बाद हमने फिर एक लाइन छोड़ दी. मैंने लाइन ड्रॉ की. आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपको वहां पे एक लाइन लीव करनी. क्लियर? नाउ आफ्टर राइटिंग द डेट विल कम योर रिसीवर्स एड्रेस. अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं? हम प्रिंसिपल मैम को लेटर लिख रहे हैं. तो हमारा रिसीवर कौन है? द प्रिंसिपल. सो वी राइट द principal. Principal's P will be capital. Principal's
Principals, P will be capital, and the spelling P-R-I-N-C-I-P-A-L. Fine. The principal. Then, कहाँ की principal है? Name of the school. Fine. Now, the name of the school, principal का P capital, T of the will be capital. ये छोटी छोटी चीजें हैं. And I've seen students making mistakes. That's the reason I'm repeating again and again. I've seen senior students writing the incorrect spelling. So principal की spelling में capital P-R-I-N-C-I-P-A-L. Then the name of the school, that is Army. Army is A capital. Publics P capital. And schools S capital. Army Public School 39 GTC, Varanasi. This is the name of your school. अब इसमें कितने सारे प्रॉपर नाउन है ना? Varanasi, name of a place, particular city. So Varanasi's V will be capital. Army's A will be capital. Public's P will be capital. Schools S will be capital. Principal's P will be capital, and THE का the T of the will be capital. So this is very important. Fine. अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? Again we leave a line. जहां मैं line draw कर रही हूँ, that's an indication कि आपको line छोड़नी है. अब इसके बाद आएगा हमारा subject. और subject हम लेटर क्यों लिख रहे हैं? हेडिंग पढ़ो. आउटस्टेशन लीव, तो लीव के लिए लिख रहे हैं. तो हेडिंग में वी राइट सब्जेक्ट की हेडिंग लीव एप्लीकेशन. लीव का L कैपिटल, एप्लीकेशन का A कैपिटल. फाइन. सो लीव एप्लीकेशन हमने हेडिंग डाल दी. सब्जेक्ट में हमने हेडिंग क्या डाली? लीव एप्लीकेशन. फाइन. नाउ अगेन लीव वन लाइन. बस अब ये लास्ट लाइन हमने छोड़ी है. इसके बाद एक भी लाइन अगर छोड़ी तो हमारा फॉर्मेट गलत हो जाएगा. क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है. फाइन. नाउ अब इसके बाद हमारा बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. सबसे पहले हेडिंग के बाद मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की है. दैट मीन्स यू नीड टू लीव 2 लाइन. फिर यू नीड टू राइट दी सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस में ये एड्रेस कोई नहीं लिखेंगे. दिस इज अ फेक एड्रेस. यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस, द एड्रेस ऑफ योर हाउस वेयर यू लिव. ठीक है? देन अगेन आई हैव ड्रॉन अ लाइन. दैट्स एन इंडिकेशन. यू अगेन नीड टू लीव वन लाइन. देन द डेट. फर्स्ट द नेम ऑफ द मंथ, कीपिंग इन माइंड दैट the first letter of the month should be capital because it's a proper noun. Then the date, then comma, then the year. Then again I've drawn a line. That's again an indication that you need to leave a line. और इन सब के बीच में फिर लाइन नहीं छोड़नी है, ये याद रखना है आपको. Then the receiver's address. And who's the receiver? The principal. Principal's P capital. Army Public School A capital, P capital, schools S capital. 39 GTC, Varanasi. Again Varanasi is V capital. Then leave one line, then write the subject. Fine. Subject is leave application. After subject again you leave one line. और subject के बाद जो line आपने छोड़ी that is the last line. Fine. Now we are going to start the body of the letter. So respected madam. हमारी principal lady है, so we write respected madam. अब दिस इज दी सैल्यूटेशन. ये हमने रिस्पेक्टेड मैडम लिखा. ये क्या है? सैल्यूटेशन. और इसके बाद लाइन नहीं छोड़नी. फाइन. अब यहीं से ठीक उसी के नीचे से दिस इज टू ब्रिंग अंडर. दिस इज टू ब्रिंग अंडर योर काइंड consideration. CONSIDERATION. This is to bring under your kind consideration that
योर नेम. मैंने जहाँ पे डैश लगा के नेम लिखा है वहाँ पे आपको नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. आपका नाम शिवम यादव है, आयुष यादव है, गर्वित शर्मा है, शर्विना जोशी है ना, मुबस्सरा शेख है, शांकृति राय है ना, आपका जो भी नेम है ना, गुंजन वर्मा है ना, समीक्षा वर्मा है, आप अपना नाम लिखेंगे. सो नेम नहीं लिखेगा कोई, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे. दैट आई योर नेम, आफ्टर योर नेम पुट अ कॉमा. स्टूडेंट ऑफ, I your name, a student of, आप किस क्लास में हैं? क्लास 4th. Let's see, my section is B. A student of class 4th B will be unable to attend the school. अब हेडिंग में देखो कितने डेज की लीव चाहिए, फॉर 2 days है ना, 2 दिन की छुट्टी चाहिए. सो आज क्या डेट है, 16th है. सो लेट्स से हम आज एप्लीकेशन दे रहे हैं और हमको छुट्टी चाहिए 18th एंड 19th. तो हम क्या लिखेंगे, क्लास 4 विल बी अनेबल टू अटेंड द स्कूल on 18th February 2021 and 19th February 2021. After February put a comma. After February please put a comma. Fine. So 19 February comma 2021, as I will be going to my village to, रीजन हम अपने विलेज क्यों जा रहे हैं, विलेज की जगह इफ यू वांट यू कैन राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑल्सो. एज आई बी गोइंग टू माई विलेज टू अटेंड माई cousins, COUSIN ' cousins wedding. हम गांव जा रहे हैं. So we won't be able to attend the school on 18th February 2021. After February put a comma. On 19th February, 18th February comma 2021, 19th February comma 2021. As I'll be going to my village to attend my cousin's wedding. Now, kindly grant me leave for, kindly grant me 2 days outstation leave. हम तो outstation लिखना ही भूल गए. So kindly grant me, ऊपर क्वेश्चन से 2 days outstation leave and oblige, OBLIGE, oblige. Fine. Now in the next line जहां oblige छूटता है छूटने दो, खत्म करो, उसके आगे कुछ नहीं लिखना. फिर न्यू लाइन से आप लिखोगे thanking you, THANK, thanking, ING, you, complementary clause, Y capital, keeping in mind, Y capital, yours, obediently, and the last your name. Write your name in capital letters. Name,
Yours obediently name, and below the name write class, section. Fine. So this is your application. अभी सबको याद है? सबसे important, सारे letters एक के नीचे एक आने. Clear? So I hope now everybody can write an application to the principal. Fine. और यहाँ पे नेम नहीं लिखना है. यहाँ पे नेम में आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो नेम लिखना है, और जो भी आपका सेक्शन है वो आप सेक्शन लिखेंगे. फाइन. सो स्टूडेंट्स, प्लीज लर्न द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन. इफ यू learn the format, there will be no problem. So that's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.